Once again, I welcome to my channel RM Classroom. So yesterday I have uploaded the question related to the transportation engineering. The question was the total widening on a horizontal curve for a national highway having the following data. Design speed is 90 km per hour. Pavement width is 14 meter. Length of wheelbase is 7 meter. Consider absolute minimum radius on this curve. Take super elevation value is 0.067 and coefficient of lateral friction is 0.15. So design speed is given. Design speed that is capital V is equal to 90 kilometer per hour, or we can write in the meter per second. So velocity in meter per second, that is denoted by small v, 90 by 3.6, so it will be 25 meter per second. Similarly, the length of wheelbase small l is denoted by the length of wheelbase, that is 7 meter. Super elevation value small e is equal to 0.067 and coefficient of lateral friction is 0.15. So we have to provide the total widening on a horizontal curve. So firstly we have to compute the extra widening that is provided, and the width of the pavement is given. So total width plus extra widening, that is the total widening provided. So extra widening can be divided into two parts, that is mechanical widening and psychological widening. So mechanical widening is provided for the off tracking. So mechanical widening, this is the widening provided required for the off tracking due to the rigidity of the wheelbase. So let us assume the total mechanical widening is denoted by Wm. So Wm can be computed by mechanical widening, that is NL square by 2R. So with the help of this expression we can compute the mechanical widening, where n is the number of lane, small n is the number of lanes, L is the length of wheel base, और जनरली जो ये लिया जाता है 6 मीटर या 6.1 मीटर, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तब, और r जो है वो हमारी रेडियस ऑफ दी सो रेडियस है। तो यहां से जो NL स्क्वायर बाई 2R जो होगा वो दैट इज द मैकेनिकल वाइडनिंग, और यहीं पे एक टर्म है L स्क्वायर बाई 2R, जिसे बोला जाता है ऑफ ट्रैकिंग। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये भी वैल्यू पूछ देता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रैकिंग। सो L स्क्वायर बाई 2R इज द ऑफ ट्रैकिंग. Second part that contributes in the extra widening, that is psychological widening. So this is provided for psychological reasons such as to provide greater variability of steering at higher speeds to allow extra space for crossing and overtaking of vehicles. So psychological widening जो है वो कैसे निकालेंगे? तो psychological widening can be computed. Let WPS is the psychological widening, that is equal to capital V divided by 9.5 into a square root of R. So इस एक्सप्रेशन से जो है वो हम लोग साइकोलॉजिकल वाइडनिंग निकालेंगे। वेयर वी जो है यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर में रखना है, वी इन किलोमीटर पर आवर, और आर तो हमारा रेडियस ही है। सो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसे हम लोग WE से डिनोट करेंगे, दैट इज द सम ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, जिसे हमने WPS से दिखाया है और मैकेनिकल वाइडनिंग को WM से दिखाया है। सो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो हो जाएगा, दैट इज द सम ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। सो वी कैन राइट NL स्क्वायर बाई 2R प्लस V बाई 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ R. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग. But this formula is applicable only for if the value of number of lane is greater than equal to 2. 2 से ज्यादा या 2 के बराबर होगा तभी हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ये सम ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू सिंगल लेन के लिए जो है हमें साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को हम लोग अवॉइड करेंगे। सो यहाँ पे जो हो जाएगा एक्स्ट्रा वाइडनिंग, दैट इज द सम ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग, दैट इज इक्वल टू NL स्क्वायर बाई 2R फॉर द सिंगल लेन। और भी कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि अगर आपकी जो रेडियस की वैल्यू, इफ रेडियस इज ग्रेटर देन 300 मीटर, ग्रेटर देन इक्वल टू 300 मीटर, नो नीड टू
प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अगर रेडियस की वैल्यू लाइज इन बिटवीन 50 मीटर से 300 मीटर के बीच में, सो प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग एट बोथ साइड। अगर रेडियस की वैल्यू, इफ रेडियस इज लेस देन 50 मीटर, सो प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग एट इनर साइड। इनर साइड से आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना है। सो दीज आर द वेरियस गाइडलाइंस है कि आपको ये भी चेक करना है कि क्या है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमको टोटल विड्थ ऑफ द वाइडनिंग है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकाल लें। और एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज द सम ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए? तो एक्सप्रेशन जो है हमारा NL स्क्वायर बाई 2R प्लस कैपिटल V डिवाइडेड बाई 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ R। पूरे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो मैं यूज करूंगा स्मॉल v, दैट इज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। जहां पे भी कैपिटल V की जरूरत होगी, जैसे यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल वाइडनिंग है तो यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर में रखना है, बाद बाकी सब जगह आपको जो है वो मीटर पर सेकंड में ही रखना है। सो आपका टोटल विड्थ ऑफ द पेवमेंट दिया हुआ है, टोटल विड्थ ऑफ द पेवमेंट, टोटल विड्थ ऑफ पेवमेंट दैट इज इक्वल टू 14 मीटर। सो नंबर ऑफ लेन जो है, नंबर ऑफ लेन मैंने मान लिया है कि पर जो विड्थ जो है, एक लेन की विड्थ जो है वो 3.5 मीटर है। सो 14 डिवाइडेड बाई 3.5, सो इट विल बी 4 मीटर। 4 नंबर ऑफ लेंथ 4 है, जो 2 से ज्यादा है मतलब कि जो हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना है उसमें साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का भी कंट्रीब्यूशन होगा। बिकॉज मैंने बोला है कि जब नंबर ऑफ लेंथ 2 से ज्यादा या 2 के बराबर हो तब हम लोग साइकोलॉजिकल वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे। एक लेंस के लिए हम लोग साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को नहीं प्रोवाइड करेंगे। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होगा इन द फॉर्म ऑफ ओनली मैकेनिकल वाइडनिंग। सिमिलरली बोला जा रहा है कि रेडियस जो लेना है वो इस क्वेश्चन में वो है एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। सो एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस R is equal to small v square divided by E plus F into G, where V is the velocity मीटर पर सेकेंड में है। तो यहां से हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस जो है वो निकाल ले। एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस दैट इज इक्वल टू V की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 0.067 प्लस 0.15 इंटू 9.81। तो यहां से आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.067 प्लस 0.15 इंटू 9.81। तो ये वैल्यू जो आ गई 293.6 मीटर। ये वैल्यू जो है वो 293.6 मीटर जो है आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। ये 300 मीटर से ज्यादा नहीं है, सो हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है वो प्रोवाइड करना है। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 मीटर। ओके, सो एक्स्ट्रा वाइडनिंग एट प्रोवाइडेड एट बोथ साइड। सो यहां से जो हो जाएगा एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो सबसे पहले हम लोग निकाल ले एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो हो जाएगा NL स्क्वायर बाई 2R प्लस कैपिटल V बाई 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ R। सो N की वैल्यू 4, लेंथ ऑफ व्हील बेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 मीटर। सो 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 293.6 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ 293.6। तो इसको अगर हम लोग कंप्यूट करें तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो हो जाएगा ये दिस वैल्यू इज 0.887 मीटर। कंप्यूट करके देख लीजिए इस वैल्यू को। सो ये कितना हो गया? इस वैल्यू को अगर देखा जाए तो 4 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 293.6 प्लस V जो है आपका 90 डिवाइडेड बाई 9.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 293.6। सो ये वैल्यू जो आ गई आपकी 0.8866 आ रहा है, तो हमने लिख दिया है 0.887 मीटर। सो टोटल वाइडनिंग कितना हो जाएगा? सो टोटल वाइडनिंग जो प्रोवाइड किया जाएगा, टोटल वाइडनिंग दैट इज टोटल वाइडनिंग जो हो जाएगा W जो हो जाएगा, टोटल वाइडनिंग जो हो जाएगा W2 इज द विड्थ ऑफ द पेवमेंट प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग। सो विड्थ ऑफ द पेवमेंट है 14 मीटर प्लस 0.887। सो यहां से आ गया आपका 14.887 मीटर। ऑप्शन देखा जाए
तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो है आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा 14.89। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन जो है आपका वो सही होगा, दैट इज 14.89 मीटर।